Okay guys, voice clear है कल्याणी? Yes, sir. ओके, 1 मिनट। ठीक है, सो अप टू दिस हम लोगों ने क्या लर्न किया, हाउ टू इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर। अप टू दिस हम लोगों ने लर्न किया हाउ टू इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर। सो राइट नाउ वी आर familiar हाउ टू इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, आई वांट टू यूज अ स्ट्रक्चर विद फंक्शन। तो आपको स्ट्रक्चर का एरे पता है, हाउ टू क्रिएट एन स्ट्रक्चर एरे, हाउ टू वर्क विद दैट, लाइक हाउ टू क्रिएट एन एरे विद इन स्ट्रक्चर, यहाँ तक टोटल पता है। नाउ गाइस नेक्स्ट थिंग इज आई वांट टू वर्क विद द एरे ऑफ स्ट्रक्चर। मींस व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, आई नीड अ फंक्शन जो स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट गेट करे एंड इट रिटर्न्स दैट। कोई इंटेंशन नहीं है इस प्रोग्राम का, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बट व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे एक सिंपल सा ऐसा फंक्शन डेवलप करना है जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को रिटर्न करे। एंड सेकंड फंक्शन आई रिक्वायर जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्चर दिए, दो डमी फंक्शन में बनाऊंगा। द फर्स्ट फंक्शन इज रिक्वायर्ड that is used to get the value of structure and return back, and second function I require that is used to display the structure value, but हम उसको argument में structure value देंगे। ओके, 1 मिनट, ये सिस्टम स्टार्ट हो गया, एक्चुअली ओवरहीटिंग के लिए रिस्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ ओवरहीटिंग। तो व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, पहले तो स्ट्रक्चर चाहिए, तो एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट integer id and name, id and name. Now what is my requirement guys, I need two functions, I want to define two different functions, and what is the task of that function, उस function के कामकाज क्या होंगे। The first function I require which is used to get the value of structure variable, तो एक function मुझे ऐसा चाहिए जिसके पास local variable है। so local variable मतलब उसके अंदर, उस function के अंदर मैंने declare किया, उस function के अंदर, जैसे ये function start हुआ, inside that I just declare this variable, I want to get the value, so just write down enter data and a percentage d and percentage s. Now what is my requirement, ये value तो मैं store कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, f dot name. Now what is our next requirement guys, our next requirement is ये value लेने के बाद ये function का task, in short this get function is responsible to return that value. So मुझे last में क्या लिखना है, return f. Now what is the data type of this f, f का data type क्या है, can you please tell me what is the data type of this f, that's nothing but an struct first, then it will be the return type of this function. इस function का return type क्या होना चाहिए, struct first then function, struct first and a function. Now a second function I want to define, that accept the structure value as an argument. function का task simple सा होगा कि वो उसको display करेगा, that's it. So percentage d, percentage s, just put a space over here, and f dot id and f dot name. Struct 16. Now यहाँ पे मुझे क्या करना था, मेन के अंदर हम लोग को क्या लिखना है सर, struct first and let me just write down z is equals to get. What is the task of get function, get function का कामकाज क्या है, get function is responsible to read the data. Just check this one, get function का definition check करो, वो data read करेगा, but उसमें data किसके अंदर store किया हुआ guys, it stores the data in a variable f, it stores the data in a variable f, and after that it returns that. तो ये जो रिटर्न किया वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, इट विल बी कॉपीड ऑटोमेटिकली, इट विल कॉपी टू दिस z, z के अंदर वो डेटा कॉपी होगी। नाउ डिस्प्ले दिस, सिंपली यू हैव टू राइट डाउन डिस्प्ले इन द ब्रैकेट z, simply you have to write down display in the bracket z. Now that z will be passed to the variable p, z किसमें पास होगा, that will be passed to this variable p and you can directly print it. Okay guys, मैंने यहाँ पे f लिखा था, we have to write down p actually, that's it. So is this clear? So हमने अभी स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया, that's the written type, and here we are using structure as an argument. यहाँ पे स्ट्रक्चर को as an argument यूज किया. Is it clear guys? और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, Sorry, सो कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्यों कंफ्यूजन, यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, सिंपल गेट एंड डिस्प्ले किया हम लोगों ने। सो व्हाट डिस्प्ले, मतलब सो डिस्प्ले z से डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, डिस्प्ले इन द ब्रैकेट z लिखेंगे तो z आर्गुमेंट में गया, वो आर्गुमेंट से पास होकर कहाँ पर स्टोर होगा, डिस्प्ले के अंदर हमने z लिखा,
जैसे अगर मान लो मैं डिस्प्ले के अंदर 100 लिखता, तो मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए था, मेरे पास डिस्प्ले फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंटीजर आर्ग्यूमेंट। 100 किसमें चला जाएगा, 100 किसमें चला जाएगा, पी के अंदर, यू कैन इजीली डिस्प्ले दैट। बट यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है, यहाँ से मुझे आर्ग्यूमेंट में क्या पास करना था, यहाँ से मैंने आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया, z, व्हाट इज द टाइप ऑफ z, what is the type of z, that's nothing but a struct first। तो डिस्प्ले के अंदर जो कंटेनर है, डिस्प्ले के अंदर जो कंटेनर है, मतलब आर्ग्यूमेंट में जो वेरिएबल का नाम लिखा है, वो क्या चीज एक्सेप्ट करेगा, इट ऑलवेज एक्सेप्ट द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा। तो हम लोगों ने इसीलिए वहां पे क्या लिखा है, स्ट्रक्ट फर्स्ट। तो z का वैल्यू किसमें कॉपी हो जाएगा, z का वैल्यू किसमें कॉपी हो जाएगा, दैट विल बी कॉपी टू दिस p। अब जैसे p को डिस्प्ले करोगे, दैट्स डेटा ऑफ z, दैट्स द डेटा ऑफ z। इज इट क्लियर रश्मि? यस सर। ओके गाइस, किसी और को कुछ प्रॉब्लम? आवाज कट रही है। अमन सर, इज इट क्लियर राइट नाउ? अमन? ओके Yes, sir. Yes. ओके, बाकी सबको ये प्रोग्राम कंप्लीट है गाइस, इज इट क्लियर? हम लोग ने फंक्शन के साथ इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। इट्स ए नॉर्मल डेटा टाइप। आप जैसे डेटा टाइप लिखते थे लाइक इंटीजर, फ्लोट, लाइक दैट, यू आप इसको स्ट्रक्ट फर्स्ट को इसी तरीके से यूज कर सकते हो। इट्स लाइक ए नॉर्मल डेटा टाइप, बट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कस्टमाइज्ड, दैट इज हम लोग हमारे हिसाब से डेटा मेंबर्स डेवलप कर सकते हैं, एंड डेटा को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है, दैट्स इट। नथिंग लाइक कुछ स्पेशल नहीं, नथिंग लाइक स्पेशल थिंग्स आर देयर। तो ये तो हम लोगों ने यूज किया था, बट हमको सिर्फ क्या करना था कि एज ए रिटन टाइप मुझे इसको यूज करना था। हियर आई एम यूजिंग इट एज एन आर्गुमेंट। ओके गाइस, अब जिस आप देखो, अगर मेरे पास ऐसे 5, 6, 10 फंक्शंस होते हैं, इट्स टिपिकल, मुझे हर एक जगह पे स्ट्रक्ट फर्स्ट, स्ट्रक्ट फर्स्ट, स्ट्रक्ट फर्स्ट, इट्स टिपिकल। इतनी बार मैं स्ट्रक्ट फर्स्ट लिखूं, आई डू नॉट लाइक, मुझे इतना ज्यादा टाइप नहीं करना। तो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कि मेरे पास ये स्ट्रक्ट फर्स्ट नाम का एक स्ट्रक्चर है। आई डू नॉट वांट टू फोकस राइट नाउ ऑन ए डेटा से मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी सी चीज बताओ, इफ आई वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर मैं इसका वेरिएबल डिक्लेयर करूं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? राइट डाउन स्ट्रक्ट फर्स्ट z। तो मुझे ये अभी स्ट्रक्ट फर्स्ट नहीं लिखना है। डू नॉट वांट टू राइट डाउन स्ट्रक्ट फर्स्ट, आई वांट टू राइट डाउन ओनली फर्स्ट। आई वांट टू राइट डाउन, मुझे सिर्फ ये फर्स्ट लिखना है, मुझे सिर्फ इतना सा लिखना था, फर्स्ट z, दैट्स इट। तो इज इट पॉसिबल, ऐसा लिख सकते क्या? Just save this and ask to the computer, sir, is it allowed or not allowed? इसको सेव कर रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है। I want to just check how to create a structure variable. That's an issue. Sir, this is not allowed. This is not allowed. Symbol, undefined symbol first. That's not allowed. कैसे लिख दिया आपने? But guys, what is my requirement? मुझे ये struct first की जगह पे यहाँ पे कुछ भी लिखना था, like I want to write down सूरत। अरे ऐसे थोड़ी होता है, सूरत कौन है? तो अपना कंप्यूटर भी यही बोल रहा है, व्हाट इज सूरत? सी लैंग्वेज कंपाइलर भी यही पूछ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल सूरत। बट गाइस, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मैं यहाँ पे जैसे ही सूरत लिखूं, मैं कंप्यूटर को बोलना चाहता हूँ, भाई कंप्यूटर, अगर मैंने यहाँ पे सूरत लिखा, देन प्लीज कंसीडर द मीनिंग ऑफ सूरत इज स्ट्रक्ट फर्स्ट। प्लीज कंसीडर द मीनिंग ऑफ सूरत इज स्ट्रक्ट फर्स्ट। तो फॉर दैट वी हैव टाइप डेफ कीवर्ड। फॉर दैट वी हैव, देखो मैंने कीवर्ड यूज किया। कीवर्ड वर्ड का मतलब होता है ऑटोमेटिकली वो वाइट हो गया, उसका मीनिंग मेरे कंप्यूटर को पता है। जैसे कि इंटीजर, जैसे कि कैरेक्टर, उसका कलर कोड चेक करो, वो वाइट है। जैसे कि स्ट्रक्ट, वॉइड, द सेम वे मैंने यहाँ पे टाइप डेफ यूज किया। सो टाइप डेफ, मुझे किसकी जगह क्या यूज करना था सर? स्ट्रक्ट फर्स्ट की जगह मुझे लिखना था सूरत। ओके, सो पहले कंप्यूटर को इन्फॉर्म कर दो, सर दिस स्ट्रक्ट फर्स्ट, उसकी जगह पे हम लोग सूरत इन फ्यूचर यूज करने वाले हैं। नाउ गाइस जस्ट चेक दिस, नाउ वी हैव नो एरर्स। Now right now we have no errors. So can I use integer की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या? Yes guys, that's okay. तो आपको सिंपल लिखना था, type def integer triple z, कुछ भी। So now triple z is not a variable, right now it's a data type। तो आप triple z के थ्रू भी variables बना सकते हैं। Yes, integer is also allowed to create a variable। ऐसा नहीं है कि integer का इफेक्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं है इंटीजर का इफेक्ट चला जाएगा, बट मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप डेफ? सर, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेकंड नेम, अ पेट नेम, अ अल्टरनेटिव नेम, अलाइज ऑफ ए डेटा टाइप। आपके पास अगर कोई डेटा टाइप है और उसका दूसरा नाम बनाना चाहते हो, आपके पास कोई डेटा टाइप अवेलेबल है जैसे कि इंटीजर,
float, struct first, and you want to create one more name. अब उसका दूसरा कोई नाम डेवलप करना चाहते हो, दूसरा कोई नाम सेट करना चाहते हो, guys, we can use type def. ठीक है, बट कैसे लिखना है? First of all, what is the syntax of that? You have to simply write down type def and old data type. पहले पुराना data type and space and new name. आपको जो भी in future name लिखना है, that's a syntax. First of all, type def, that's a keyword. कंप्यूटर को उसका मीनिंग पता है. All are the small cases. हाँ, yes. आप ये नए नाम के लिए कैपिटल केस लिख सकते हो क्या? Let me just try this. हम इस नए नाम के लिए कैपिटल कुछ लिखना चाहते हैं. So type def like float and capitals etc. Otherwise, let me just write down pqr. Okay, so let me just create a variable of type pqr. So let's say pqr. It's not allowed. Why? Okay, t दो बना दिया. Now let me compile this. So that's allowed. So आप capital लिखो, small लिखो, it doesn't matter. Okay, guys, capital लिखो या small लिखो, it doesn't matter. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. But बाद में वही नाम आपको in future use करना है. So sir, can I do one thing? मैं same नाम दो बार use करूँ तो, जैसे कि type def character capital pqr. So is this allowed or not allowed? Variable बाद में किस टाइप का बनेगा? pqr t. तो t कौन से टाइप का बनेगा? Float या character? Let me just check. Oh sir, it makes an issue. What is the issue? Sir, multiple declaration. तो गाइस ये एक डेटा टाइप ही हो गया, इसकी कुछ वैल्यू जनरेट हो गई, मतलब इसका कुछ मीनिंग जनरेट हो गया. You cannot reuse that. Okay, so that's not allowed. Not allowed to use same name multiple times. Okay, is this clear? You cannot use a same name for the multiple times. So I hope यहाँ तक कोई problem नहीं है. So what is the use of type def, guys? What is the use of type def? Type def is used to create an alias of the data type. Type def is used to create alias of the data type. तो मुझे प्रॉब्लम क्या थी सर, ये जो struct first, जब भी मुझे वेरिएबल बनाना हो मुझे क्या लिखना पड़ता था? struct first. तो हमने struct first की जगह क्या लिख दिया? सूरत. ओके, मैं एक नया प्रोग्राम ले लेता हूँ बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया. struct first डेटा टाइप्स थे मेरे पास, अंदर कुछ वेरिएबल्स थे, सो दैट इज नोन एज डेटा मेंबर्स. तो कुछ डेटा मेंबर्स थे मेरे पास. Now in future whenever I require to develop the variable of struct first, what to do guys? हमको ऐसा पूरा लिखना पड़ता है. struct first ऐसा पूरा लिखना पड़ता है. So what is my requirement? मुझे क्या करना था? मुझे ये struct first का छुट्टू नाम चाहिए. So now I can use this first t. अब ऐसा हम लिख सकते हैं first t. Is it clear? So what is the use of this struct first? Sorry, what is the use of this type def? It is used to create an alias. वो alias बनाने के लिए यूज होता है. It is used to create an alias. So I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 minute. So is it clear? But now one more thing is there. एक और फॉर्मेट है टाइप डेफ के लिए ही, एक और फॉर्मेट अवेलेबल है. मैं इस पूरी चीज को कमेंट कर रहा हूँ. Let me just write down like this. मैं इसको कॉपी कर देता हूँ. Let me paste it here. Now my requirement is मैं type def यहीं पे लिख देता हूँ. What is this? ऐसे थोड़ी लिखते हैं. तो type def first. What is the meaning of that? मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर ही लिख दिया type def. यानी उसके कर्ली ब्रैकेट को खत्म होने के जस्ट बाद मैंने लिख दिया first. The meaning of this is, meaning of that thing is equivalent. This is equivalent to this one. This is equivalent to this one. Struct first. उसके बाद मैंने जो टाइप डेफ वाला लाइन लिखा था, मतलब अभी जो हाईलाइटेड है, तो पूरा स्ट्रक्चर बनाया एंड आफ्टर दैट मैंने स्ट्रक्ट फर्स्ट की जगह फर्स्ट लिखा. दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. इज दिस क्लियर गाइस? समझ में आया? ये दोनों चीज सेम है. मतलब अगर आप टाइप डेफ सेपरेटली नहीं लिखना चाहते, टाइप डेफ सेपरेटली नहीं लिखना चाहते, तो जब स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसके आगे भी आप टाइप डेफ लिख सकते हैं एंड लास्टली आपको नाम प्रोवाइड कर दें. सो दैट बोथ ऑफ दिस आर द सेम. both of these are the same, but काफी students इस तरीके से भी use करते हैं. That is also the syntax. All these are the syntax. तो आपको सिर्फ accept करना है. Just remove the first from here. So that is also the syntax. ये error नहीं है. तो in future मुझे क्या लिखना है? Struct first या first? Variable बनाने के लिए अब मुझे क्या लिखना है? Struct first या first? Now compulsory first. Compulsory first. Is this clear? So this is also the syntax. This is also the syntax. Is this clear, guys? Anyone of like any problem, guys?
तो टाइप डेफ क्या है? व्हाट इज द टाइप डेफ? इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन अलाइस। तो सिर्फ सिंटेक्स आपको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा स्ट्रक्चर था और मैं उसका कुछ नाम सेट करना चाहता हूँ। दूसरा, तो स्ट्रक्ट फर्स्ट एंड स्पेस करके आप कुछ भी मतलब कोई भी नाम सेट कर सकते हो। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर के आगे भी आप टाइप डेफ लिख लो एंड लास्टली करली ब्रैकेट के जस्ट पहले आप कोई वेरिएबल का नाम कोई नाम सेट कर सकते हो। दैट इज इक्विवेलेंट टू जो पहला पैटर्न था, दैट इज इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट पैटर्न एंड दिस इज आल्सो द सिंटेक्स। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो ये भी एक in future you can use like that for set. Just 17 already exists. 18. Okay, so is this clear to everyone? Aman, Preeti, Jagruti, Sachin sir. Guys, clear? मुझे आपका आवाज नहीं आया किसी का। कोई प्रॉब्लम किसी को? रश्मि, सचिन सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ पे? इसलिए तो पूछ रहा हूँ गाइस, आप रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? तो फंक्शन विद इन स्ट्रक्चर यूज किया था तो सर वो प्रोग्राम गए, बस 10-15 मिनट हो गई। अभी आप वहीं पे हो? वही प्रोग्राम तो एक बार रीड करना, बाद में प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट सेशन में बाद में देखते हैं इसको। यहाँ पे टाइप डेफ में किसी को प्रॉब्लम? नो। ठीक है, वहाँ पे भी सचिन मैंने पूछा था किसी को प्रॉब्लम, तो आपने रिप्लाई नहीं किया था। ओके गाइस, नेक्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज जैसे फंक्शन वाला एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, बट राइट नाउ मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट इसके अंदर मेरे पास एक आईडी है, नेम। नाउ मुझे दो फंक्शन चाहिए, गेट सेमीकोलन हियर। मुझे दो फंक्शन चाहिए, गेट एंड डिस्प्ले। एंटर का स्पेलिंग गलत है बट इट्स ओके। मैंने एक वेरिएबल बना दिया, स्ट्रक्ट फॉर z, गेट द वैल्यू ऑफ दैट। ओके, मैं वेरिएबल यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, वो बाद में सोच लेंगे। वेरिएबल्स के लिए बाद में सोच लेंगे। z डॉट id, मान लो z इज a वेरिएबल नेम, z डॉट नेम। नाउ आई हैव अनदर फंक्शन, task of this function is to display the data. इस फंक्शन का टास्क डेटा डिस्प्ले करना है। d s z.id and z.name। अब आप एक चीज सिंपल सोचो कि मुझे दो फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो either I can use categories, मैं categories यूज कर सकता हूँ। categories मतलब कौन? with argument with return value, with argument without return value and blah blah. That's the first option. That is the first option. And another option is I can use a global variable. ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या? इन दोनों फंक्शन के अंदर कॉमन क्या चाहिए गाइस? इन दोनों फंक्शन के अंदर कॉमन क्या चाहिए? सर z भी रिक्वायर्ड। सो आप z को बाहर बना दो, z को इस तरीके से बाहर बना दो। बाहर मतलब सभी वेरिएबल के ऊपर। आपको पता हो तो रिकर्जन में हमने इंटीजर i ऊपर बनाया था, फंक्शन के बाहर बनाया था, तो दैट इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब इट इज कॉमन टू ऑल द फंक्शंस, इट इज कॉमन इन बिटवीन ऑल दिस फंक्शन। सो नाउ इफ यू विल रन दिस, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मतलब कम्युनिकेशन हो जाएगा। गेट और डिस्प्ले, गेट और डिस्प्ले दोनों फंक्शन के अंदर हमने z को यूज किया, बट दोनों में से एक भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। दोनों में से एक भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, हमने बाहर लिखा है। सो दैट इज अ कॉमन फंक्शन, सॉरी दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। इज दिस क्लियर? ग्लोबल वेरिएबल का मतलब, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब इट इज कॉमन, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन एंड इट इज कॉमन टू ऑल द फंक्शंस। वो सभी फंक्शंस के बीच में कॉमन हो। तो मुझे क्या करना था? मुझे दो फंक्शंस चाहिए थे। फर्स्ट फंक्शन डेटा गेट करे, अनदर फंक्शन विल डिस्प्ले द डेटा। एक फंक्शन को डेटा गेट करना है, एक फंक्शन को डेटा डिस्प्ले करना है। तो इन दोनों के बीच में मुझे कॉमन चाहिए था, तो मैंने बाहर ही बना दिया, स्ट्रक्ट फर्स्ट z। इज दिस ओके गाइस, एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, बट नाउ आई डू नॉट वांट टू यूज दिस पैटर्न, मुझे ये यूज नहीं करना है। तो वन मोर वे इज देयर, आप यहाँ पे भी z लिख सकते हैं। जस्ट चेक दिस, मैंने कहाँ पे लिखा है, struct first and
गाइस मैंने करली ब्रैकेट के बाद z लिखा, ये पैटर्न हम पहले भी देख चुके थे। तो अगर हम लोग आगे टाइप डेफ लिखे देन z इज नॉट ए ग्लोबल वेरिएबल। अगर टाइप डेफ नहीं लिखा और आपने करली ब्रैकेट के बाद z लिखा, नाउ z इज ए ग्लोबल वेरिएबल। समझ रहे हो? टाइप डेफ लिखा देन वो अलाइस हो जाएगा। अलाइस मतलब स्ट्रक्ट फर्स्ट की जगह आप z लिख सकते हो। बट अगर आप टाइप डेफ नहीं लिखते, अगर आप टाइप डेफ नहीं लिखते एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, अगर आप टाइप डेफ नहीं लिखते एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। सो दैट्स द सेकंड वे ग्लोबल स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, स्ट्रक्चर का ग्लोबल वेरिएबल बनाने का एक और तरीका है कि कर्ली ब्रैकेट के बाद भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। इज इट डन? That's a syntax. You have to accept that. That is the syntax. आपको सिर्फ accept करना है ये चीज। Guys, is it done? कोई प्रॉब्लम किसी को? जागृति, सचिन, रश्मि? ठीक है गाइज, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे समझ में आ गया कि आज आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि शायद आपकी तरफ से रीडिंग या प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम है या प्रोग्राम की प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो मैं कल वापस मॉर्निंग में एक सेशन अरेंज कर रहा हूँ 11 o'clock। कल 11 बजे सेशन होगा, महेश सर लेंगे जो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये दो चीज क्लियर कराएंगे। गाइस इट्स बिट कंफ्यूजिंग, सो हो सकता है तो पहले रीड कर लीजिए स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। 11 बजे मॉर्निंग चलेगा ना सबको? 11 o'clock। रश्मि कॉलेज नहीं है ना? रश्मि कॉलेज नहीं है ना कल? सर कॉलेज तो अब होता ही नहीं है। ओके 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 गाइस, नो प्रॉब्लम। एंड आई होप आप लोग को ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही ना किसी को ज्यादा? नो सर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो गाइस। मुझे पता है कि घर पे बर्डन नहीं होता तो हम लोग को प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं होती, बट हो सकता है तब तक प्रैक्टिस करो। ओके तो गाइस आज मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ बिकॉज इसके बाद वाला टॉपिक तो और कंफ्यूज कर देगा। मैं वीडियोस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए और प्रोग्राम खुद से बना लीजिए। ओके, कल 11 बजे। ओके गाइस।